नमस्कार, अभिनव पहल 3.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आजकल हर एक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है, या यूं कहें कि अब एआई हमारे जीवन में अपनी जगह बना चुका है। अब जहाँ जैसी भी ज़रूरत है, तकनीक का ये नया रूप आपकी हमारी मदद के लिए तैयार है। हमारे देश का भौगोलिक ढांचा बहुत अलग है, और जब बात दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधाओं को देने की होती है तो उसमें परेशानियां भी आती हैं। लेकिन अब इन मुश्किलों का हल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हो रहा है। एक ख़ास शुरुआत हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नागालैंड के वोखा ज़िले में। बदलाव की नई कहानी लिख रहा है वोखा ज़िला। हर सफल कहानी में एक सफल नायक होता है, और वोखा ज़िले में बदलाव की इस सफल कहानी में नायक का नाम है वोखा साथी चैटबॉट। वोखा साथी ने एक चैटबॉट यानी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस पहल के ज़रिए नागरिकों की पूछताछ, सेवा अनुरोधों और शिकायत निवारण से जुड़े मामलों में जानकारी उपलब्ध कराता है। यानी रोज़मर्रा की होने वाले कामों का निपटारा अब आराम से हो जाता है। आज बात करते हैं इस बदलाव की, साथ ही जानेंगे क्यों है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़रूरी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। अजीत कुमार रंजन जी, आप पूर्व डीसी हैं वोखा ज़िले नागालैंड से, और रोहित सिंह जी, आप पूर्व एडीसी हैं वोखा ज़िले नागालैंड से। चर्चा की शुरुआत के पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। Nestled in the majestic hills of Nagaland, Voka district is home to the Lotha tribe. However, its remoteness presents significant challenges. Villages are scattered across vast terrains, making it difficult for citizens to access information and government services. The current system of public service delivery faces many challenges. Remote and hard-to-reach settlements make it difficult for people to access services. Limited access to information leaves many unaware of available schemes. The quality of citizen-government interaction is often poor. Service delivery is fragmented and siloed, causing inefficiencies. Poor last-mile service delivery means many services don't reach those in need. Grievance redressal mechanisms are inefficient, leaving issues unresolved. Introducing Vokha Sathi, your one-stop solution for facilitating seamless communication between citizens and government departments, leveraging WhatsApp to empower citizens. Want information about a government scheme? Just ask Vokha Sathi. Need to apply for a service like credit schemes, disaster and emergency related services, healthcare or maternity benefits? Vokha Sathi handles that too. Hi everyone, my name is Johanna Marie from Voka, and I'm a beneficiary of the PM Vishwakarma. So the Sati AI chatbot has helped me immensely in various ways. So instead of wasting my time going to various departments applying for the scheme, I just had to send a message in WhatsApp saying I want to apply for PM Vishwakarma, to which the AI Sati chatbot has assisted me and also applied for me through WhatsApp only. So I think it's very useful, and a lot of people from our district has also availed through AI Sati chatbot only. Thank you. Hi, my name is Merbin Kikon, and I'm a beneficiary of CM Microfinance scheme. As I was looking for a scheme to avail, I got to know about this Sati AI chatbot. With the help of this Sati AI chatbot, I got proper assistance and proper information. Through that Sati AI chatbot, I applied this scheme for my small startup, and it has been a very helpful thing for me. Vokha Sathi operates smoothly with low bandwidth, providing remote areas with timely, efficient services and reducing waiting times and unnecessary trips to government offices. First, citizens submit their service requests, which are automatically routed to the relevant department. Each request is assigned a unique ID, allowing the administration to track its progress effectively. Departments can then send bulk or customized notifications to citizens, keeping them informed every step of the way. The admin dashboard is the central hub for efficient management, helping track the progress of all service requests in real time.
Here is a glimpse of the impact. A significant portion of the population now has improved access to government services. Through reduced transportation and outreach costs, beneficiaries saved substantially, with over 1.03 crores rupees in outreach expenses cut. Bulk messaging reduced costs and enhanced turnout at village-level camps, showcasing efficient service delivery without multiple field trips. Proactive messaging increased enrollment in various schemes and programs. Ayo mhalodo acha shuka anaha PMMVY beneficiary. She benefits shijo Vokha Sati chatbot jilona anzan chali watsebina documents olandaro ethela nilijang handoki ondina anzan chali scheme shi hunjoga Vokha Sati chatbot shijo elam hona edena okina kokavani PMMVY shida mena government scheme chumbo mbana tsoledo ha apply to kicheda. Hello, aya ningja chinyo zung osi suspend village naga. Ana scheme hu ijo subsidy scheme ijo CMMEFI scheme ga. Osi hu ijo Vokha Sati timyak cha WhatsApp pesina. Onde nan zan chali hi scheme hi hunjo. Osi hi scheme hi jo lumhona ndolla dona edena okina kokavana through internet edena online apply to ki hi subsidy hi sngaro dena chang tim chang nen zan chali hungala muswa ayo aning jo yang so to ejung to atacha chilushi suspend chilushi training chawabana la ana meda raka shangshilo osonoki elmoto chawabana thingchi zamoatina 메다지 미니 한스지 있으죠. 고도의 초지도구나 에모갈럼 초다바나 탱지 포레스트 디파트먼트 약차 이원즈치 어디노 가고 아라니토 Vokha Sati 팀도 자 호질로 가고지 아하니 독초 오세 Vokha Sati 팀지 약차 이 DC administration 이원 아피우지 약차 어디노 쪽 애니텀 설어줘 administration 통이나 orang emergency fund to 4,000 taro anzanchi cho. Hi, I'm Mr. Chandema Padi, ATC Samagra Shiksha Vokha. During August 2019, due to incessant rain, a natural disaster occurred in the residential hostel run by Samagra Shiksha Vokha. Not knowing what to do, we decided to approach the district administration through Sati Disaster and Emergency Related Services. The institution, the hostel, is grateful that I, on behalf of the department, the Sati, without any giving us problems or hindrances, gave us a helping hand on. With access to 40 different government schemes and services in one place, Vokha Sati is a true game changer for the people of Vokha. तो आपने देखा कि वोखा साथी चैटबॉट किस तरह से नागालैंड के तमाम लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। अजीत जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। किस तरह से ये जो वोखा साथी चैटबॉट एक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आपको ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी, आपको, आपकी पूरी टीम को। ये आइडिया की अगर मैं बात करूं तो कैसे आपके जहन में ये आइडिया आया? तो इसका जो शुरुआत है वो हमारे पुराने अनुभवों पर आधारित है, ख़ासकर कि कोविड के फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में भी लोगों को जो मूल सुविधाएं थी उनके जानकारियों के लिए काफ़ी उन्हें जद्दोजहद करना पड़ता था और कई बार उन्हें अफसरों के पास जाकर पर्सनली ऑफिस में जाकर इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी। हालांकि उस वक़्त जब हम लोग तरह का दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक सोशल डिस्टेंसिंग की बातें चल रही थी, तो किस तरह से आसानी से लोगों के पास पहुंचा जाए वो एक चैलेंज था। और जो हेल्पलाइन वगैरह नंबर हैं वो अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं और जो हिली एरियाज़ हैं, हिली डिस्ट्रिक्ट्स में जनरली एक समस्या होता है कि स्केल नहीं होता, मतलब वहाँ पॉपुलेशन की कमी होती है, डेंसिटी पॉपुलेशन इज़ वेरी लो जी। तो एक हेल्पलाइन मेंटेन करना
एक तो महंगा भी होता है और आज के तकनीक मतलब आज के ज़माने में शायद हम लोग उसे बड़े आसानी से दूसरे तरीके से कर सकते हैं। जी। तो एम्बुलेंस जैसी नंबर कि अगर पीएचसी में डॉक्टर का क्या नंबर है, कैसे कांटेक्ट करें, एम्बुलेंस कैसे लें, तो इसे बेसिक क्वेश्चंस को लेके हमारे दिमाग में पहले ये आया कि इसे सॉल्व किया जाए। इसके बाद मेरी पोस्टिंग हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हुई और मैंने ये सोचा कि इसे कुछ करा जाए, क्योंकि जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो उसको रन करने में, उसको चलाने में दिक्कत हो रही थी। फिर जब मैं डिस्ट्रिक्ट में गया तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआत की कि एटलीस्ट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हेल्थ का है वो लोगों को पहुंचाया जाए। लेकिन जब हमने बनाना शुरू किया तो हमें लगा कि इस तकनीक का, जो इस नए प्लेटफॉर्म का और एआई का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो क्यों ना हम पूरे तरह से इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए और करते करते 40 सुविधाएं जो हैं जिला प्रशासन के और दूसरे विभागों के सभी को इस पे लाया गया। इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट स्कीम जितने भी हैं, मातृत्व वंदना योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, तमाम तरह को समेकित करके आपने इसमें डाल दिया। जी रोहित जी, चूँकि आप एडीसी रहे हैं वोखा ज़िले में और आपकी और अजीत जी दोनों की एक बेहतरीन जुगलबंदी रही है, कह सकते हैं कि इस योजना को आगे बढ़ाने में। चूँकि पूर्वोत्तर का ज़िला है नागालैंड, तो किस तरीके से आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, और कैसे वहाँ के लोगों में आपने इसको उनके बीच में अवेयर कैसे किया इस प्लेटफॉर्म को? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने हम लोग को यहाँ पे आमंत्रित किया प्रोजेक्ट वोखा साथी चैटबॉट के बारे में जानकारी देने के लिए और इस पर वार्तालाप करने के लिए। तो जैसा कि सर ने भी बताया कि हम लोग के जो अनुभव रहे हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और प्रशासन में काम करते हुए, तो हम लोगों ने नागरिकों का जो भी चैलेंजेस रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स, समस्याएं वो लोग फेस करते हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, तो वो समस्या हम लोग कहीं ना कहीं दूर करना चाहते थे। और जो सरकार और नागरिकों के बीच में जो गैप रहता है एक तरीके से, उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करी इस प्रोजेक्ट की माध्यम से। और जैसा कि आपने इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा, तो इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने, हमारे पास चूँकि ज़्यादा मैन पावर नहीं था इससे रिलेटेड, जो आईटी रिलेटेड मैन पावर रहता है, तो इसमें बेसिकली मैंने और सर ने ही इनिशियली ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। और इनिशियल जितना काम था वो हम लोगों ने ही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इसमें हम ही लोगों ने अपनी तरफ से किया था। बाद में काफ़ी स्टाफ भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और बाकी सर ने भी बताया कि जो हमारे अनुभव हैं और इसमें जितना जो सरकारी स्कीमें हैं और जो गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो हम लोग यही चाहते थे कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग नागरिकों तक ये चीज़ पहुंचा सकें। और धीरे धीरे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते गए, इसमें हमने तो और स्कीम्स को इसमें इंक्लूड करना चालू किया। जैसे सर ने ही बताया कि जितनी फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे PMMVY हो गया, PM विश्वकर्मा हो गया, और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जैसे CMHIS है, और जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज हैं, इसको हम लोग इसमें इंक्लूड करते थे। और जैसे आपने पब्लिसिटी के बारे में पूछा, तो इसका हम लोगों ने लॉन्चिंग जो किया था मई 2023 में, इसमें माननीय राज्य मंत्री श्री A नारायण स्वामी जी वोखा के दौरे पर थे उस समय, तो उस वक्त ही हमने उनके द्वारा इसका लॉन्च करवाया। और इसके बाद जैसे ही ये हमारा लॉन्च हुआ, इसमें लोगों के बीच जागरूकता क्रिएट करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जितने मीडिया हाउसेस थे, न्यूज़पेपर्स थे, इसमें अपना इंटरव्यू दिया और इसके बारे में हमने जानकारी जो है देना स्टार्ट किया। और इसके पश्चात हम लोगों ने जो भी नई स्कीम्स या सर्विसेज हम लोग प्लेटफॉर्म में इंक्लूड करते थे, उसको हम लोग पोस्टर्स, बैनर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अवेयरनेस गवर्नमेंट ऑफिसेज में हर जगह लगा करके, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और इसका इस्तेमाल जो है लोग बेहतर तरीके से कर पाएँ। अजय जी, चूँकि आज के वक्त में देखने को मिल रहा है कि AI कहीं ना कहीं तकनीकी एतबार से भी और प्रैक्टिकली भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और हर क्षेत्र के लोगों के लिए इसने बड़ी आसानियाँ मुहैया कराई हैं। तो अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के कुछ USP और स्पेशल फीचर्स के बारे में जानना चाहूँ, या हमारे सनसेट TV के दर्शक जानना चाहें, तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे?
तो इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबी तो ये है और ख़ास करके दूर दराज के इलाकों के लिए, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चैलेंजेस को डील कर रहे थे, दुर्गम क्षेत्रों के चैलेंजेस को डील कर रहे थे, और वहाँ पे नेटवर्क कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी रिलायबल नहीं है। अब मॉनसून के सीज़न में और भी बुरी हो जाती है हालत। और तो ऐसे समय में जो कम बैंडविड्थ में भी काम कर सके, आमतौर पे हम लोग वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, पर वेबसाइट के लिए भी मोबाइल फ्रेंडली बहुत बार नहीं होते। आजकल तो मोबाइल फ्रेंडली भी आने लग गए हैं, पर फिर भी उसमें एक हमेशा इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये हाइब्रिड मोड में काम करता है और लो बैंडविड्थ में काम करता है। और दूसरी बात ये है कि आसानी से लोगों को पता है ये व्हाट्सएप पे ही चलता है, हालांकि और सोशल मीडिया और दूसरे चैनल से भी चलाया जा सकता है, बट हमने इसको व्हाट्सएप पे ही रखा था उस वक्त। और लोग इससे परिचित हैं अच्छी तरह से, और आसानी से वो डील कर पाते हैं इसमें, बिकॉज लोगों को आसानी से इस पे आदत है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का। और इसकी और खूबी ये है कि इसमें आप नेचुरल भाषा में, जो संवाद की भाषा जो है, संवाद की भाषा में आमतौर के आम भाषा में आप इनसे बात कर सकते हैं और ये आपको जवाब दे सकता है। इसके लिए कोई किसी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है सिटीजन्स को, नागरिकों को। अपने भाषा में वो सवाल पूछ सकते हैं और एआई की तकनीक से मदद से आपकी भाषा को समझ के मिलाकर आपके कहने का मतलब ये है कि एक क्लिक पर तमाम जानकारियाँ उपलब्ध हो सकती हैं। रोहित जी, चूँकि हेल्थ एक बड़ा सेक्टर है और बहुत ही कंसर्न विषय है ये आम लोगों से जुड़ा हुआ, तो ये भी मैंने फीचर्स में देखा आपके वोखा साथी में। तो इसके बारे में आप बताइए कि अगर किसी को कुछ इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई है, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं या कोई सलाह मशवरा करना है, तो कैसे एड्रेस करता है आपका प्लेटफॉर्म ये? तो इसमें जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, तो इसमें हेल्थ रिलेटेड भी स्कीम्स, जितनी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें हमने इंक्लूड करी, सम्मिलित करी हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं देना चाहूँ तो चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और इवन वैक्सीनेशन रिलेटेड सर्विसेज, या अगर आप डॉक्टर के साथ अगर आपको अपॉइंटमेंट करनी है किसी पीएचसी सीएचसी में, तो भी उनके कॉन्टैक्ट नंबर आप उसमें व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू आप ले सकते हैं। और किसी भी जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है और उससे रिलेटेड अगर कोई बेनिफिशियरी है, कोई यूज़र है, तो वो उसमें जाके अपना सारा डिटेल्स दे के जो भी डिटेल्स उस स्कीम को लेने के लिए चाहिए होगा, तो वो सारा डिटेल उसमें दे करके वो हमारा जो भी ऑपरेटर हैं कंसर्न स्कीम से रिलेटेड, उनके पास वो एक एसएमएस में और एक ईमेल में उनके सारे यूज़र के डिटेल्स और एक यूनिक आईडी के थ्रू एक एप्लीकेशन जारी होती है और वो सारी डिटेल्स उस ऑपरेटर के पास शेयर होती है। पीछे उसके बाद वो जो यूज़र हैं या बेनिफिशियरी हैं उनको फ़ोन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके उनसे बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, या किसी दिन अगर उनको ऑफिस में विज़िट करने का ज़रूरत पड़े पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए, तो वो एक विज़िट शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे कि उनका एक सहज तरीके से वो उस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और जो भी उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है या टाइम इन्वॉल्व होता है ट्रैवल का, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि बहुत दूर दराज के इलाके होते हैं, जोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो वो उनका कहीं ना कहीं सेव होता है, तो वो आराम से किसी भी स्कीम का ले सकते हैं। और इमरजेंसी के तौर पे भी इसमें एम्बुलेंस का फ़ोन नंबर लेने के लिए आपकी लोकेशन से वो नियरेस्ट आपका एम्बुलेंस सर्विस या कोई पीएचसी या सीएचसी या कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल भी, उसका आप लोकेशन या फ़ोन नंबर आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है अजीत जी, चूँकि नागालैंड का शुमार पूर्वोत्तर के एक दुर्गम ज़िलों में होता है, एक काफ़ी दूर है, और इस तमाम मैकेनिज़्म और प्लेटफॉर्म के पीछे इंटरनेट का एक बड़ा हाथ होता है। कनेक्टिविटी की बात मैं कर रहा हूँ, तो कैसे इंश्योर आप करते हैं इस सिलसिले में कनेक्टिविटी? जैसा मैं आगे भी बोल चुका हूँ कि ये अनरिलायबल नेटवर्क जहाँ है, जैसे नागालैंड में नेटवर्क है, मैक्सिमम जगहों पर नेटवर्क है, पर अनरिलायबल है। आज है, कुछ घंटों के लिए गायब हो गया, तो पर अगर मानसून आता है तो नेटवर्क पूरी तरह से चले जाते हैं, कभी कभी अलग अलग जगहों पे डिपेंड करता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसे समय में भी ये जो प्लेटफॉर्म है वो हाइब्रिड मोड में काम करता है और ऑफलाइन भी काम करता है। ऑफलाइन भी काम करता है, और आपने जो जानकारी चाहिए, आपको जो सवाल आपने पूछे हैं, वो आपके मोबाइल पे स्टोर होके जब जैसे ही हल्का सा भी बैंडविड्थ उसको मिलता है इंटरनेट का, तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है और आपको जवाब भी उसके मिल जाते हैं।
रोहित जी, मैं चैलेंजेस पर बात करना चाहूँगा कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस पूरे प्लेटफॉर्म को विकसित करने में। जी, जैसे कि ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट्सएप चैटबॉट, और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कन्वर्सेशनल एआई, इस सब चीज़ों का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, जिससे कि हम आसानी से कोई भी यूज़र इसमें कॉन्वर्सेशन करके जो भी सर्विसेज या स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन है इसमें ले सकता है। तो एक तो पहली बात तो क्योंकि एक यूनिक और इनोवेटिव मेजर हम लोग ले रहे थे, इनिशिएटिव हम लोग कर रहे थे अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे पास भी जानकारी का अभाव था कैसे करेंगे और कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले वो एक चैलेंज हम लोगों ने फेस किया, हम लोगों ने काफ़ी टाइम उसमें ज़ाया किया और कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, और उस पर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया। सर के साथ भी हम इनिशियली हम ही लोग थे टीम में। और दूसरा ये कि हमारे पास इसी से निकल के आता है कि हमारे पास मैन पावर की कमी थी जो इन सब टेक्नोलॉजीज़ में जागरूक हो, तो उसको हम लोगों को कहीं ना कहीं खुद से ही इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा स्टार्टिंग में। तो ये एक मैन पावर का चैलेंज मैं बोलूँगा कि था हम लोग के साथ। और उसके बाद जब ये इम्प्लीमेंट भी हो गया, उसके बाद भी हमें बहुत सारी मॉनिटरिंग के लिए या कोई ऑपरेटर के लिए लोग चाहिए रहते थे जो थोड़ा मोटिवेटेड रहें, जो काम करने के लिए तत्पर रहें हमेशा। तो वो भी एक चैलेंज रहा कि हम लोग कैसे इस चीज़ को मैसेज उनको एक्सप्लेन कर पाएँ कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट का और सिटीजन्स का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जी जी जी। तो ये समय की बंदिशें भी हमारे साथ है। अजीत जी, आपसे सवाल ये है कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, इसको विकसित करने की बात तो रोहित जी ने भी बताया, ख़ास तौर पे इसमें पोटेंशियल भी काफ़ी। इसके फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से ये रिप्लिकेट हो सकता है दूसरे राज्यों के लिए, उसके बारे में क्या कहना है आपको संक्षेप में? बिल्कुल, तो हमने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए भी किया है फॉर एग्जांपल, और हम ये पाते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है फॉर एग्जांपल, तो या फिर लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे हाल फिलहाल में लोकल बॉडीज़ के अकाउंटिंग फॉर एग्जांपल, हमारे कैपेसिटीज़ नहीं है, जो छोटे लोकल बॉडीज़ हैं वो अपने अकाउंटिंग भी नहीं कर पाते ढंग से। तो अगर एआई के माध्यम से हम प्लेटफॉर्म्स को फ्रेंडली बनाएं, जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें ऑटोमेटिक फॉर्म फिलिंग हो, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इससे हमारे जो तंत्र है उसका कैपेसिटी बहुत बढ़ता है। तो एआई का जो रोल है, हमने इलेक्शंस में ट्रेनिंग में यूज़ किया और कई दूसरे ज़िलों ने भी किया होगा, बट हमने भी इसको यूज़ किया, और आगे जाते हुए मुझे लगता है कि हमारे सरकारी तंत्र के अंदर ही नंबर 1 हम अपने सिस्टम्स को एआई इनेबल्ड बना सकते हैं, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो जनता, जो सिटीज़न है, नागरिक को पहुंचने के जो तरीके हैं उसमें ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि हमें एआई का यूज़ करके लोगों से दूर नहीं होना, ये भी याद रखना चाहिए, हमें लोगों के नज़दीक आने की कोशिश करना है, और जितना इंटीग्रेट कर सके हम सेवाओं को, बेहतर है। हाँ, एक जगह ले, बिकॉज नागरिकों को दर दर भटकना ना पड़े, वो आपका मोटिव। हाँ, तो ये इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके आसानी से उन्हें सुविधाएं मुहैया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो जो आपने मैसेज साझा किया, इससे संदेश साफ है कि नागालैंड से जो वोखा चैटबॉट का सूरज निकला है, उसकी रोशनी हिंदुस्तान के, भारत के तमाम राज्यों में फैलेगी, और कहीं ना कहीं ये किस तरह से रेप्लिकेट हो आपने सुना दोनों अधिकारियों के ज़रिए। फ़िलहाल इस ख़ास पेशकश पे इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.